Namaskar students. So in this lecture we are going to start solving the examples of symmetrical three phase fault. लेकिन वो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले दो तीन ऐसी चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है. इन दैट केस इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द एग्जाम्पल. सो एक चीज़ है वो है परसेंटेज रिएक्टेंस. तो ये चीज़ हमने पर यूनिट वाले चैप्टर में पहले से भी कर रखी है कि भाई पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. Also, we are going to talk about short circuit MVA. So, if we have the value of base MVA, how we can find the value of short circuit MVA, because that will be important for finding the value of short circuit current. Okay, and also one of the important thing is we are going to discuss in today's lecture, that is infinite bus. Okay, so what is infinite bus? That we are going to study. So, if the capacity of the system is so large, okay, so if let us say we are having a large power system, in that case if any external disturbance is going to happen, that do not affect the value of your voltage and the value of your frequency. Okay, so that kind of system is known as infinite bus. Okay, so in such situation your external power source is generally known as infinite bus. Get it? Okay, and that can be represented by an ideal source of that is having a constant voltage with zero internal impedance. Okay, so every power system has the number of such point, or we can say a bus whose voltage and frequency can be assumed as a constant. Okay, so both voltage and frequency we are assuming as a constant. So physically, if we practically talk about infinite bus, so practically it is not possible to have such kind of infinite bus into the system, but in large system, whenever we are doing external disturbance into the system, due to that there is no change in the value of your voltage and frequency, that is known as infinite bus. Okay, so this is one of the important term. The next thing we are going to discuss is about percentage reactance. Okay, we have already discussed this term while we are discussing we were discussing about per unit chapter, per unit system. So, the reactance of your generator, your transformer or reactors is usually expressed in per unit reactance rather than using actual reactance, that is in ohms. Okay, we are going to convert in per unit values. So, percentage reactance of a circuit is generally defined as percentage X is equal to, we can write I X divided by V multiplied by 100, where I is nothing but it is your full load current. Okay, same V is nothing but your phase voltage and X is your reactance, but that will be in ohm. Okay, so percentage of your total phase voltage drop, that is I into X. Okay, so percentage of your total phase voltage drop in the circuit when full load current is flowing. So, full load current will be flowing in case of V. That is why we can say the percentage X is nothing but I X divided by V. Okay. Now, one formula that you have keep in mind, that is if we are interested to find out the per unit value of your reactance, is nothing but your per unit value is equal to your X in ohm, sorry, X in ohm multiply by your kVA, or we can say MVA divided by kV square. So, if we are doing like this, we have to divide it by 10. Okay, so that will be in ohm. Okay, this value will be in ohm. So, percentage X per unit value of X is nothing but our actual value multiplied by kVA rating divided by kV square.
okay, or MVA rating divided by KV square. Okay, in this way we can find the per unit value of your reactance that we have discussed in our previous chapter. Same, if we are interested to find the value of short circuit current, that is very important. Okay, we are interested always to find the value of short circuit current. So if we are interested to find the value of short circuit current, that is nothing but V divided by X, where X is, we have to take the value of X from this equation. Okay, so if you find out the value of X from this equation, and if you put right here, you will have short circuit current ISC can be written as I multiply by 100 divided by X in percentage. Okay, so short circuit current is obtained by multiplying the full load current by your percentage reactance. Okay, we can say per unit value of your reactance, but that will be in denominator. Here you can see. Okay, so short circuit current is nothing but it is obtained by multiplying the full load current by percentage reactance in denominator. Okay, so it may be worthwhile to mention here the advantage of using percentage reactance instead of ohmic reactance in short circuit calculation. So whenever we are doing a short circuit calculation, we are going to use X, percentage X rather than using X. Okay, we'll come to that point why we are doing so. Okay, so let us discuss another term, that is short circuit MVA. So let me just go to the next slide, and the next thing is short circuit MVA. Now how we can find the value of short circuit MVA? So although the potential at the point of the fault is always 0, but it is a normal practice to express the short circuit current in terms of your short circuit MVA based on the normal system voltage at the point of the fault. Okay, so short circuit MVA is nothing but the product of your normal system voltage V and the short circuit current at the point of the fault, that is generally expressed in MVA. Okay, so short circuit MVA is nothing but your product of your normal voltage multiplied by the short circuit current. But now we are talking about 3-phase system, so we have to multiply by 3. So that will be nothing but our short circuit MVA. Okay, it will be 3V multiplied by ISC. Now we know what is the value of ISC. Okay, so in previous slide we have find out the value of ISC, and that is nothing but ISC is equal to your rated current multiplied by 100 divided by percentage X. Okay, so if you put the value of this I into this equation, we can write 3Vi multiplied by 100 divided by X percentage. Okay, and 3 into Vi is nothing but our base MVA. Okay, multiply by 100 divided by X percentage. So if we are interested to find out the value of short circuit MVA, so short circuit MVA is nothing but your base MVA multiplied by 100 divided by percentage reactance. Okay, so in that way we can find the value of short circuit MVA. Okay, is it clear? So this short circuit MVA thing is formula is very important. Also this formula of ISC is very important, and percentage reactance is very important. Okay, so with this let us try to solve some examples. Okay, so हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि फॉर द गिवन सर्किट शोन इन द फिगर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट. नाउ कब हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है? व्हेन द फॉल्ट अकर्स एट द टर्मिनल P. जब ये P टर्मिनल पे फॉल्ट होल्ड हो रहा है तभी हम फाइंड करनी है ISC की वैल्यू. ठीक है, और दूसरी चीज़ जब ये पॉइंट Q पर फॉल्ट हो रहा है तब हमें फाइंड करनी है ISC की वैल्यू. ओके, सो ये दो कंडीशन के लिए हमें P और Q पॉइंट पे फॉल्ट होने के बाद शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ ये फॉल्ट क्या है?
सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो हमारे पास 2 बस सिस्टम है जहाँ पर जनरेटर है G1 10 MVA 0.1 PU और जनरेटर 2 का रेटिंग है 5 MVA 0.075 पर यूनिट। ओके, ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया है हमें 15 MVA 0.06 पर यूनिट। ट्रांसमिशन लाइन का हमें इम्पीडेंस दिया है 5 + j 20 ओम्स और ट्रांसमिशन वोल्टेज है 33 kV, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस KVA और वैकेंसी यहाँ पर MVA में रेटिंग है तो बेस MVA और बेस KV हमें सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बेस वैल्यू क्या ले रहे हैं। सो यहाँ पर मैं लेट से बेस MVA 10 MVA लेता हूँ और बेस KV की वैल्यू है वो 33 kV कंसिडर करता हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सब बेस वैल्यू अलग है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेम बेस पर इन सब की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। सो लेट से यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। सो लेट से जनरेटर G1 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। सो G1 का न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सो पर यूनिट जो चैप्टर था पर यूनिट सिस्टम, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास बेस MVA है और आपके पास पर यूनिट रिएक्टेंस भी है लेकिन आपको सब सेम बेस में कन्वर्ट करना है, सो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सो उसके लिए हमारा फॉर्मूला था न्यू रिएक्टेंस, ओके। सो न्यू पर यूनिट, आई एम राइटिंग न्यू पर यूनिट इज इक्वल टू ओल्ड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय KV बेस, दैट विल बी यहाँ पर आएगा ओल्ड, KV ओल्ड डिवाइडेड बाय KV न्यू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय MVA न्यू डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड। सो ये फॉर्मूला आप सबको अभी याद होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरेटर 1 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। जनरेटर 1 की हमें न्यू वैल्यू फाइंड करनी है पर यूनिट रिएक्टेंस की। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड वैल्यू, सब ये फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे रखनी पड़ेगी ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू यहाँ पर मुझे दी है 0.1 PU, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रख दूँगा 0.1 PU मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर आप देखिए मुझे KV रेटिंग है बेस KV 33 KV दिया है, तो वो सबके लिए दिया है, इसलिए 33 न्यू वैल्यू है, 33 ओल्ड वैल्यू है। सो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए 33 डिवाइडेड बाय 33 स्क्वायर, सो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। MVA न्यू की वैल्यू मुझे दी है 10 MVA, MVA ओल्ड की भी वैल्यू कितनी है जनरेटर 1 के लिए 10 MVA, सो उसको भी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही आएगा। सो जनरेटर 1 की न्यू वैल्यू मुझे मिलेगी 0.1 पर यूनिट, ठीक है। ये रिएक्टेंस की वैल्यू मुझे मिली है XG1 न्यू। अब मैं XG2 न्यू फाइंड करूँगा, ठीक है। सो अगेन हमारा KV वैल्यू सेम है तो फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओल्ड वैल्यू हमारे पास है 0.075, सो यहाँ पर 0.075 मल्टीप्लाई बाई, अब हमारे पास न्यू MVA है 10, सो यहाँ पर आएगा न्यू MVA, ओल्ड MVA था 5, सो ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.15 पर यूनिट, ठीक है। ये XG1 मुझे मिल गया, XG2 मिल गया। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है तो XT न्यू भी फाइंड करना पड़ेगा, सो उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, सो मेरे पास ओल्ड वैल्यू थी 0.06 और MVA रेटिंग था 15, सॉरी न्यू MVA रेटिंग 10 है, ओल्ड था 15, सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलती है 0.04 पर यूनिट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, XG1 की वैल्यू फाइंड करी, XG2 फाइंड करा और XT की वैल्यू फाइंड करी, सबको हमने सेम बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी है, तो ट्रांसमिशन लाइन का सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, Z बेस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए Z बेस वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो उसके लिए आपको ये वाला इक्वेशन याद होगा, बेस KV स्क्वायर डिवाइडेड बाय
बेस MVA। ठीक है, सो बेस KV स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 33, सो 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA की वैल्यू है 10। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी 108.9 ओम। अब जब हमारे पास Z बेस की वैल्यू है और हमारे पास ये वैल्यू तो है एक्चुअल इम्पिडेंस ऑफ आवर ट्रांसमिशन लाइन, सो पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, पर यूनिट वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 5 + 6 20 और बेस वैल्यू है 108.9। सो उसको फाइंड करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 0.046 j 0.89366। ओके, ये होगा पर यूनिट में। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम में जितने सारे इक्विपमेंट कनेक्टेड है उसको हमने सेम बेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर सेम बेस में कन्वर्ट कर दिया तो अब मैं उसका रिएक्टेंस डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट है वो सेम बेस में कन्वर्ट हो गए हैं। सो उसके ऊपर से अगर मैं उसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो जनरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर हमारा था ट्रांसफॉर्मर, फिर हमारे पास था ट्रांसमिशन लाइन। सो ये बन गया हमारा रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मिली थी मुझे 0.1, इसकी वैल्यू मिल रही थी 0.50। ठीक है, ये था आपका G1 पोलैरिटी लेट्स से इट इज ± G2। यहाँ पर वैल्यू मिली थी 0.04 और इसकी वैल्यू मिली थी 0.046 प्लस J 0.18366। ओके, और एक चीज़ है जो हमें भूलनी नहीं है कि यहाँ पर था हमारा पॉइंट P जहाँ पे फॉल्ट हो रहा था और यहाँ पर था हमारा पॉइंट Q जहाँ पर फॉल्ट होने के बाद हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि 3 फेज फॉल्ट अकर एट पॉइंट P। सबसे पहले P पॉइंट की बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है वो पिक्चर में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें फॉल्ट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, द पर यूनिट इम्पीडेंस अप टू फॉल्ट P। सो अगर यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है तो ये वाला इम्पीडेंस है वो कैलकुलेट होगा, ये वाला इम्पीडेंस कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है। सो इसके आगे का कोई भी पार्ट है वो कैलकुलेट नहीं होगा। सो अगर मैं टोटल ZF कैलकुलेट करूँ, दैट इज़ फॉल्ट इम्पीडेंस व्हेन फॉल्ट अकर्स एट पॉइंट P, सो उसकी वैल्यू क्या आएगी। सो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, इसके साथ ये सीरीज़ में है। सो J 0.04 से के साथ पैरेलल में होगा ये हमारा कॉम्बिनेशन, दैट इज़ J 0.1 दैट इज़ इन पैरेलल विथ J 0.15। सो उसका सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ZF। तो ये आप करने के बाद इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे ZF इज इक्वल टू 0.1 पर यूनिट। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे फॉल्ट इम्पीडेंस। अब मैं कैलकुलेट करूँगा शॉर्ट सर्किट MVA। ठीक है, तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि शॉर्ट सर्किट MVA अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर बेस MVA डिवाइडेड बाय योर परसेंटेज रिएक्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले देखी थी। तो अब हमारे पास ZF की वैल्यू है, दैट इज़ इन पर यूनिट ओनली। ओके, so that x percentage is nothing but ZF. Okay, so it is nothing but your reactance value in per unit. This is also the reactance value in per unit. Okay, so हमारे पास बेस वैल्यू कितनी थी, हमने 10 MVA बेस वैल्यू ली है, हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.1। तो 0.1 वैल्यू मेरा यहाँ पर रखूँगा तो मुझे मिल रहा है शॉर्ट सर्किट MVA की वैल्यू 100। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट MVA, अगर मुझे फॉल्ट करंट निकालना है तो शॉर्ट सर्किट MVA इज नथिंग बट योर शॉर्ट सर्किट MVA दैट इज SC MVA इज नथिंग बट वी कैन राइट
√3 वी आई, ठीक है, एम वी ए इज़ नथिंग बट √3 वी इंटू आई। सो अगर मुझे ये फॉल्ट करंट आई एफ एट दैट टाइम एट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी आई एफ नॉट आई। सो अगर मुझे आई एफ की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम वो करते हैं, सो योर आई एफ इज़ नथिंग बट योर फॉल्ट करंट इज़ नथिंग बट एम वी ए और वट एवर द वैल्यू ऑफ इट इज़ इन के वी और एम वी ए डिवाइडेड बाई √3 इंटू के वी, ठीक है। सो हमारा शॉर्ट सर्किट एम वी ए है, शॉर्ट सर्किट एम वी ए की वैल्यू क्या मिली थी हमें, वो मिली थी 100 एम वी ए। सो 100 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √3 और के वी की वैल्यू कितनी है 33 के वी, ठीक है। सो ये हो जाएगा सबसे पहले 3 और इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1749.5 एम्पियर। सो इतना करंट फ्लो होगा जब हमारे पॉइंट P पे फॉल्ट होगा, ठीक है। उस टाइम पे फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी होगी, सो ये वैल्यू इतनी होगी 1749.5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 क्या है कि जब हमारा फॉल्ट है सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट, ये पॉइंट Q पर होगा, तब ISC की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है वो फाइंड करना है। अब जब Q पॉइंट पे फॉल्ट होगा तो हमारे ZF की न्यू वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पहले ZF की वैल्यू थी J0.1 पर यूनिट, अब ZF की वैल्यू क्या मिलेगी, सो ये कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें हमें ये ऐड करना पड़ेगा, तब वो हो गया हमारा टोटल ZF, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये वाली टर्म ऐड करेंगे तो ये ZF मिलेगा। वो करने के बाद जो ZF की वैल्यू मिलती है इससे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो ट्रांसमिशन लाइन वाला जो टर्म था XT दैट इज़ पर यूनिट न्यू वैल्यू, वो वैल्यू क्या मिली थी हमें J0.046 प्लस J, सॉरी यहाँ पर J नहीं था, 0.183, इस वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। सो उसके बाद आंसर आपको मिलेगा 0.2784 और अगर इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे मिलेगा एट एन एंगल 0.79, ओके, दैट विल बी इन पर यूनिट। सो अगर मेरे पास ZF है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट MVA कैलकुलेट करना हो तो शॉर्ट सर्किट MVA इज़ नथिंग बट बेस MVA डिवाइडेड बाय ZF इन पर यूनिट। सो बेस MVA की मेरे पास वैल्यू है 10, ZF की वैल्यू है 0.2874, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल रही है वो है 34.79 MVA, ठीक है। अगर मेरे पास शॉर्ट सर्किट MVA है, मुझे फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, अगेन सेम MVA डिवाइडेड बाय √3 इंटू KV, ओके। सो MVA की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है वो है 3.79, दैट इज शॉर्ट सर्किट MVA multiply by 10⁻⁶ and we have to divide it by √3 into KV that is 33। so इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो है 608.8 एम्पियर, ओके। सो ये दोनों केस में अगर टर्मिनल P पर फॉल्ट होता है और टर्मिनल Q पर फॉल्ट होता है, उस वाले केस में फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या आती है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। फर्स्ट केस में आ रही है 1749.5, सेकेंड केस में मिल रही है 608.8 एम्पियर, ठीक है। अब सेम फॉल्ट करंट को हम दूसरी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। लेट से लेट अस एज्यूम दैट, और वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है वो ठीक है कि नहीं। लेट अस एज्यूम दैट सिस्टम इज ऑन लोड एंड सोर्स वोल्टेज, so we are assuming our source voltage is 1 per unit, okay, for 3 phase fault that is occurring at point Q। अब सेकेंड केस के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस के लिए फाइंड कर सकते हैं लेकिन अभी हम सेकेंड केस के लिए कर रहे हैं। सो उस केस में फॉल्ट करंट की वैल्यू हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज फॉल्ट करंट इन पर यूनिट इज नथिंग बट योर सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z इन पर यूनिट, ओके। सो एट दैट टाइम मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जब फॉल्ट हो रहा है पॉइंट Q पे,
तो उस वाले केस में अगर हमें फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें फॉल्ट करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, सो वो होगा टोटल सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय वट एवर द वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, सिंपल है। तो हमारे पास ES की वैल्यू में एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 पर यूनिट है, ZPU की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली थी, लेट मी जस्ट चेक, ZPU की यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है वो है 2874। सो उसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ 2874, सो IFPU की वैल्यू मुझे मिली है वो है 3.4795 पर यूनिट। ठीक है, ये फॉल्ट करंट की मुझे वैल्यू मिल रही है, लेकिन किस में है, पर यूनिट में है। मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, क्योंकि पिछले एग्जांपल में यहाँ पर हमने देखा है एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है मुझे 608.8 एम्पियर। तो मेरी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आनी चाहिए, सेम। ठीक है, सो पर यूनिट वैल्यू है, मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दैट इज पर यूनिट वैल्यू इज नथिंग बट योर एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो मेरे पास पर यूनिट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मुझे बेस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो आई बेस इज नथिंग बट, हमारे पास बेस KVA भी है और बेस KV भी है और MVA भी है। सो उसमें से हम IB की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज बेस MVA दैट इज बाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई √3 KV। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा IB बेस करंट की वैल्यू वो मिलेगी 174.95 एम्पियर। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, सो एक्चुअल करंट इन एम्पियर दैट इज IF, बट दैट विल बी इन एम्पियर। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, PU दैट इज 3.4795 मल्टीप्लाई बाई बेस दैट इज 174.95। सो ये आंसर आपको मिलेगा एग्जैक्टली 6.0738 एम्पियर। ठीक है, जो हमें लास्ट केस में भी मिल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोनों मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे उसको आप सॉल्व करके फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वाले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया है। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के बारे में। थैंक यू सो मच।